Good morning, all of you. How are you all, students? I hope you all are fine. So, today we will start our new topic, that is stoichiometry, right? So, what is stoichiometry basically? Stoichiometry is the area of chemistry and chemical technology on which determination of quantities of reactants and products of chemical reaction is based. Means जब भी हम ड्रग्स की जो फॉर्मेशन होती है तो उसमें कितने जो रिएक्टेंट है उसका कितना मास लिया हुआ है, राइट? कितने जो रिएक्टेंट है वो कितना उसका मोल उसमें लिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑल्सो द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म उसका मास कितना है. ऐसा तो है नहीं कि दो कंपाउंड लिए और उनको ऐसे ही मिक्स कर दिया, राइट? और जो हमारा प्रोडक्ट था वो तैयार हो गया. अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, ओके, उसके लिए हमें प्रॉपर जो उसकी क्वांटिटीज़ हैं वो मेज़र करनी पड़ती है, राइट? तो स्टिक्योमेट्री में हम ये देखेंगे कि हम कैसे जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटीज़ को हम कैसे मेज़र करते हैं और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो लेट अस understand this with the help of an example. So see, we have done this formula earlier in our class, how we find number of moles. So number of moles is equal to given mass divided by molar mass. So this molar mass is gram atomic mass or gram molecular mass, right? We have discussed about it. So molar mass is divided into two types, gram atomic mass or gram molecular mass, right? So by this formula we are trying to do these numericals. So let's start. Find number of moles of H2SO4 in 4 gram of H2SO4, right? अगर 4 ग्राम H2SO4 दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है. वी नो द फॉर्मूला वेरी वेल, राइट? वी जस्ट अप्लाई the values here and we find out. So you see, mass is given to us, that is 4 gram. Okay, so molar mass we know that, and we find it. H2SO4 molar mass is, that will be 98. We will find from here 2 into 1 plus 32 atomic number of atomic mass of sulfur, right, plus 16 of oxygen and multiply by 4 atoms are here. So we will get 98. I hope molar mass is all the students are well acquainted with the molar mass, how to find it, right? After dividing these two values we get 0.5 mole. Okay, so these are the number of moles which we have to find out here. Okay, so let's twist this question little, or if we take another example, find mass of 2 moles of SO2, right? सल्फर डाइऑक्साइड हमें दे रखा है, उसके 2 मोल्स का हमें मास निकालना है. ओके, so students, we will use only this formula, and by this formula which quantities are given to us, we just utilize that and we will find out. Okay, so see, मोल्स दिए हुए हमें, मास हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमें पता है, चली जाएगा, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास. इज इट ओके? ओके, सो 2 moles are given, so we will put value 2 here. Mass, we don't know about the mass, so let it be x. And molar mass, we will calculate molar mass of sulfur dioxide, that will be for sulfur it is 32, for oxygen it is 16, and 2 atoms are oxygen it will here, so it will be 32 again. So it will be x by 64. So multiply these, what we will get x is equal to 128 gram, right? तो जो हमारा मास था वो कितना हो गया? 128 ग्राम. I hope this is very easy concept till now. I hope this is understood by all of you because we have done it earlier also. Let us take more example. Okay, ये देखो,
अब स्टिक्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमें क्या देखना होता है सबसे पहले, अगर हमें रिएक्शन दे रखी है तो फर्स्टली वी हैव टू चेक इट आउट वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, राइट। हमें सबसे पहले फर्स्ट रूल है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ओके तो अब देखो क्या दिया हुआ है, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ट फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। अब मीथेन दे रखी है, राइट। मीथेन को अगर बर्न करते हैं तो वो कितना क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट। तो हमें क्या करना है कि मीथेन का इसने मास दिया हुआ है, हमें फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, हमें वो निकालना है। ओके तो पहले देखो रिएक्शन चेक, फर्स्टली चेक रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। CH4 + 2O2। ओके कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड, सो दिस इज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, राइट। तो कार्बन यहाँ पे भी 1 है, 1 है। ओके हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, 2 oxygen here and 2 oxygen, so it is balanced reaction, right? So there is no need to balance the reaction, but if it is not balanced we have to balance the reaction. Okay, so what is given to us, देखो जो हमें दिया होता है स्टूडेंट्स, हम उसी को लेके चलेंगे, राइट। और फॉर्मूला हमने कौन सा लगाना है, जो हमने बात की थी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके सो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 हमें फाइंड आउट करने हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो मास हमें कितना गिवन है, 16 ग्राम। ओके वी विल राइट 16 ग्राम। वी विल फाइंड द मोलर मास फ्रॉम हियर, सो दैट विल बी 12 फॉर कार्बन एंड 4 फॉर हाइड्रोजन, इट विल अगेन 16, so it will be 1. So we can say that number of moles in methane we get 1. Okay 1 मोल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, CO2 का मास निकालना है। ये देखो अब नंबर ऑफ मोल्स अगर CH4 के लिए 1 है, राइट, तो जो CO2 है उसके लिए भी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, 1 है। यस देखो जो भी इसके आगे कोफिशिएंट लगा होता है उसके अकॉर्डिंग भी अगर 1 मोल ऑफ CH4 और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, जब कंबाइन होंगे तो वो क्या देंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर, राइट। सो देखो अब जो हमारा CH4 है वो कितना आ गया, 1 मोल। अगर CH4 यहाँ से 1 मोल की आया है तो ये भी यहाँ पे 1 मोल की इक्वल है, राइट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी किसकी इक्वल होगा, 1 मोल की इक्वल होगा। अब हमें मोल की वैल्यू पता चल गई तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मास, सो विच इज आस्क्ड टू अस इन द क्वेश्चन। सो लेट अस फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो 1 the number of moles of CO2 1 is equal to mass, we don't know the mass because we have to find it, and molar mass, so molar mass of CO2 what it will be, 12 for carbon and 16 into 2 32 for oxygen, so it will be 44. So here we get x is equal to 44 ग्राम। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें कितनी मिलेगी, 44 ग्राम। तो जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं वो हमें पता चल जाती हैं जब भी हम स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। इन्हीं कैलकुलेशंस के बेस पे जो भी ड्रग्स प्रिपेयर करनी होती है इन्हीं कैलकुलेशंस के बेस पे होती है कि कितनी अमाउंट में हम कौन सा सब्सटेंस और कौन से एलिमेंट्स लें और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उसको हम कितनी अमाउंट में बना सकते हैं। व्हाट इट, सो लेट ट्विस्ट दिस क्वेश्चन अ लिटिल। सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे देखो अभी तो मास पूछा हुआ था, राइट। अब इसने बोल दिया कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, जो CO2 प्रोड्यूस हुई है वो कितनी वॉल्यूम में प्रोड्यूस हुई है, राइट। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो
हमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है, राइट. सो व्हाट इज दैट? वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. दिस इज द formula. So number of moles we know about 1. So volume we have to find out. Let it be x and 22.4 liter. So after multiplying it, what we get 22.4 liter. So इतनी amount of जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इतनी जो वॉल्यूम है उसकी वो इतनी प्रोड्यूस होगी, राइट. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. So let us take another example. Find volume of CO2 produced when 50 gram of CaCO3 is heated. Okay. देखो हमें CO2 की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. अगर 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड. अब कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर रहा है तो क्या कंपाउंड्स दे रहा है हमें, क्या क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. फर्स्ट रूल क्या था कि बैलेंसिंग चेक करनी है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. तो कैल्शियम हियर 1, हियर इज ऑल्सो 1, कार्बन इज 1 here, and in this case carbon is 2, right. And after that oxygen is 3 here, and oxygen in this case is 3. Okay. Oh sorry, this is the calcium, not the carbon. I just considered it. So calcium is 1, calcium is again 1, right. Carbon 1, so again here carbon is 1. I just considered it, sorry for that. And oxygen is 3, so oxygen is also 3, 2 and 1, right. It is balanced. So now move further. What we have to do, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है. सबसे पहले जो भी हमें गिवन अमाउंट है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट. जो हमें गिवन अमाउंट है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. अब देखो इसकी वॉल्यूम तो हमें फाइंड आउट करनी है. हमें गिवन है व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड. मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का हमें क्या है, मास गिवन है, राइट. कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है. तो लेट अस फाइंड आउट number of moles in calcium carbonate. So number of moles in calcium carbonate, mass which is 50 gram, और मोलर मास कितना हो जाएगा कैल्शियम के लिए 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, दैट विल बी 100. तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 0.5 मोल. ओके, तो वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल्स. ओके, I hope this is clear to you, right. अब देखो 0.5 मोल, यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट और यहाँ पे भी 1, ठीक है. अब 0.5 मोल जब कैल्शियम कार्बोनेट के कंबाइन हो रहे हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के हम 0.5 मोल ले रहे हैं, तभी तो जो कंपाउंड्स बन रहे हैं हमारे वो भी क्या होंगे 0.5 मोल के बनेंगे, राइट. क्योंकि 1 कोफिशिएंट है इधर भी और इधर भी. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके भी मोल कितने होंगे 0.5. आई होप दिस इज क्लियर. सो अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, वी गॉट द मोल. कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पता चल गए ना. तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो अप्लाई द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए थे हमारे 0.5, और वॉल्यूम यहाँ से निकाल लो. तो मल्टीप्लाई बोथ दीज टर्म्स वी विल गेट 11.2 लीटर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. You have to practice these questions as much as you can. So let us take another example. Find